Namaste, people. Welcome to the show Get Set Green. I'm your host, Pooja Arvi. This podcast was created as a part of Podcast Lab by India Film Project in association with Anchor by Spotify. In last episode, we spoke about the individual contribution of CO2 emissions, which is causing the greenhouse gas emissions in overall, and also its effect on the global warming. In this episode, we will talk about a new concept. Okay, so let me introduce you to today's guest. So, do you have any guesses? So, today's guest is Mr. Rakesh Khatri. He is also known as the Nest Man of India. So why is he called Nestman of India? That is because what he started doing was, we know that rapid growth of urbanization caused we lost many species of birds because of that, as they lost their shelter. So what happened gradually over the years, we are seeing the great reduction in the number of birds in cities and as well as in certain rural parts of our world. So what Ramesh Khatriji thought was, he wanted to build a nest for birds. That is because if they have shelter, their populations will start growing. So that was his intention. So he made a small prototype using the small fibers, coconut coils, and etc. etc. So that is how his journey started. And I should say that so he started building those kind of nests at one day. So now today Eco Roots Foundation, which is under his guidance, what they are doing is they have nearly built 1,75,000 nests, in which more than 75% nests are already accepted and occupied by the birds. Doesn't it sound interesting? So let's know the story by him in his own words. And one information I would like to give, that today's episode will be in partly English and as well as Hindi. And I also have given certain brief description of his sayings in Hindi. I hope that serves the best. So let's just get started. So let's welcome to the show Rakesh K. Khatri, the founder of Eco Roots Foundation. Welcome to the show, sir. थैंक यू पूजा थैंक यू पूजा थैंक यू पूजा पूजा जब मैं बहुत when I was a very small boy, we lived in a Chani Chowk. It's a three-story, multi-story flat. On the top, there is a tin shed. So many sparrows are there. So I used to came back from the school like a naughty boy, throw my bag here, shoes here, and सीधा छत के ऊपर on the roof. On the roof, I hide some criminal equipments of mine. Is one tokri, that bucket, one stick, and one rope and some grains. तो मैं क्या करता था, उसको टोकरी को इस तरीके से खड़ा करके उसके नीचे डंडी को लगा देता था और रस्सी लगा के दूर बैठ जाता था दाने डाल के. जैसे ही स्पैरो आता था, वी पुट द रोप और वो उसमें बंद हो जाता था. फिर उसको निकालते थे, उसको खूब सारे कलर लगा के और उड़ा दिया करते थे. यू कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश और आई कंटिन्यू. You continue, sir. This story was nice. You continue. At the end, I will just tell brief. ओके ओके. देन फिर क्या होता था कि जब मैं ऊपर से ये करके आता था इतना बड़ा क्राइम और नीचे आता था, तो मेरे मम्मी पापा मेरे कान पकड़ के ऐसे हिलाते थे कि अच्छा तुमने रंग लगाया. मैंने कहा लगाया. जोर से पड़ता था स्लैब. फिर वहां से हम लोग वी शिफ्टेड टू द अशोक विहार. इट्स वेरी फार फ्रॉम द चांदनी चौक, ओल्ड वॉल सिटी. तो वहां कोई घोंसला नहीं दिखता था. वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, अंडर कंस्ट्रक्शन कॉलोनी. देयर इज अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड देयर इज नो नेस्ट एट ऑल. हम देखते थे कि नेक्स्ट तो दिखता नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे. तब तक आपके साउथ से हरा वाला नारियल आना शुरू हो गया था. हरा नारियल जो होता है, डाब नारियल, वो आना शुरू हो गया था. तो हम लोगों ने क्या करा, खूब सारे एक दिन नारियल इकट्ठे करे, उनको खाली करा, उसके अंदर न्यूज़पेपर डाला, उसके ऊपर ग्रास लगाई, ड्राई लीव्स लगाई और उसको हमने घोंसलों की तरह लगा दिया. हमने सोचा अब तो घोंसले लगा दे तो चिड़िया आ जाएगी इसके अंदर. लोग हंसने लगे. वो कहने लगे कि ऐसी चिड़िया कैसे आ सकती है इसके अंदर, जब आपने घोंसला लगाया. चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है. कोई नहीं आया. 40 दिन हो गए, 40 डेज के बाद हमने क्या करा, उसको ढूंढना शुरू करा. तो जब सारे घोंसले ढूंढ रहे थे, तो 38 नंबर का जो घोंसला जो नेक्स्ट हमने लगा रखा था, उसमें 2 छोटे-छोटे बुलबुल, रेड वेंटेड बुलबुल के बच्चे थे. तो हमें लगा कि नहीं, ये हो सकता है. तब तक आई लॉस्ट माय फादर. हम लोग वहां से भी शिफ्ट कर गए. हम लोग नोएडा के पास आ गए. दिल्ली में एक जगह है नोएडा, वहां आ गए. तो वहां
ग्रेन की मार्केट थी, वहाँ बहुत स्पैरोज है, लॉट ऑफ स्पैरोज। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ घोंसले लगा जाए। तब तक हमने R&D करी खूब सारी, और हमने बैम्बू स्टिक से घोंसला बनाना शुरू करा। वो बैम्बू स्टिक का घोंसला बहुत कमाल था जी। फॉर अ मिनट, दिस इज अवर R&D रिजल्ट। दिस इज a bamboo stick Great. skeleton, ग्लोब की शेप में, इट्स लाइक दिस। और इससे क्या क्या बनता है, इससे फिर जो घोंसला बनाते हैं हम, वर्ड पे घोंसला, इसको फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये इसका होल है और ये इसकी डंडी है। इसके ऊपर कपड़ा लगाए, कपड़े के ऊपर जिस नारियल का जूट जो जिसको आप फाइबर कहते हैं वो लगाए, और रस्सी से उसको बांध के ऐसा घोंसला बना दिया गया है। Great. ये हमने Wonderful. बनाने शुरू करे, और हमने 20 के करीब बनाए। और 20 बनाने के बाद हम लोग उस जगह पहुंच गए जहाँ घोंसले लगाने थे। तो एक शॉप थी, उस शॉप के अंदर हमने 19 रख दिए, और उसकी दीवार के ऊपर एक घोंसला लगा दिया। कैमरे होते थे, न्यूज फोटोग्राफर थे, और कैमरा लेके बैठ गए। पहले दिन बैठे रहे, सेकंड डे बैठे रहे, थर्ड डे कुछ नहीं हुआ। फोर्थ डे जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, वहीं जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। अगर आज चिड़िया नहीं आई तो, मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो मैं घोंसला निकाल के ले आऊंगा और इस काम को बंद कर। मैं वहां चला गया, अपना कैमरा लगा के बैठ गया। आई थिंक अराउंड 11:15 वन मेल स्पैरो केम, और आने के बाद वो घोंसले के ऊपर यहाँ बैठा, उसने पूरा उसका सर्कल लिया और वो फिर उड़ गया। Okay. आई थिंक जस्ट 5 और 10 मिनट्स बैक वो वापस आया वहां से, उसके साथ फीमेल भी थी। वो दोनों ने उसको अच्छे तरीके से देखा, और उसने छोटे छोटे ट्वीट्स को डालना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा हो गया, खड़े होकर ताली बजाई, जितने लोग थे सबने ताली बजाई। तो लगा ये तो कमाल हो गया। 2 मिनट बाद देखा जो 19 और घोंसले रखे थे वो लोग अपने घरों को उठा के ले गए कि हम लगाएंगे इसको। हाँ. अब लगाने के लिए तो ले गए। अब जब उन्होंने लगा लिए तो उसके 3 दिन के बाद जब हम वहां पहुंचे, ऑल आर ऑक्यूपाइड, सारे के सारे अडॉप्ट कर चुकी थी बात। तो ये बेसिक इंसिडेंट था। सेकंड इंसिडेंट हुआ कि जब मैं चीफ मिनिस्टर को ज्वाइन करा था, दिल्ली चीफ मिनिस्टर, उनके घर में बच्चों की वर्कशॉप होती थी, हम करते थे। तो मैं वहाँ कुछ एक जगह अर्बन फॉरेस्ट, वहाँ नेस्ट लगाने जाया करता था। तो मैं एक दिन नेस्ट लगा के वहां से आ रहा था, तो देर बाद ओल्ड मैन ही कॉल्ड मी, सुनिए इधर आइए। मैं उसके पास गया, इसे सिट डाउन, तो बैठ गया। क्या करते हो आप? मैंने कहा मैं घोंसले लगाता हूँ। ठीक है, अच्छा। तो उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, उसमें से कुछ निकाला और मुझे दिया। तो मैंने उसको ऐसे ले लिया और ऐसे उससे बात करता रहा मैं बहुत देर तक। मैंने देखा भी नहीं कि वो क्या है। अच्छा. उसने मुझसे कहा कि यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन। आप वो काम कर रहे हैं, हमने जिनका घर छीनाया आप उनको घर दे रहे हैं, तो आपके ऊपर गॉड की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आएगी। Correct. आप इस काम को कंटिन्यू रखिएगा। तो मुझे लगा कि ये आदमी शायद हो सकता है इसको गॉड ने कोई मैसेंजर बना के भेजा होगा कि वो मुझे रास्ता दिखाएगा, क्योंकि तब तक मैं परेशान भी था कि अगर मुझसे नहीं हुए तो क्या होगा। लेकिन उस दिन के बाद से आज 2021 नवंबर 19 में आपके सामने बैठा हूँ। 2008 से लेकर के अब तक मैंने 1,75,000 से ज्यादा नेस्ट बनाए हैं Great. Wonderful. और लगाए हैं, और उसमें से 75% ऑक्यूपेशन इधर ऑक्यूपाइड हो गए, वो सारे के सारे, वो सब ऑक्यूपाइड हो गए सारे के सारे। तो ये एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी। उसके बाद फिर लिम्का बुक के अंदर रिकॉर्ड आया, 2 बार आया। हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन के अंदर एक प्राइज मिला बेस्ट प्रैक्टिस के लिए स्पैरो कंजर्वेशन की। उसके बाद ताइवान ने बहुत अच्छा अवार्ड दिया। फिर नेशनल अवार्ड मिला इस साल का मुझे। फिर ICSE की 4th क्लास की इंग्लिश बुक के अंदर एक चैप्टर आया मेरे ऊपर कि मैं कैसे बनाता हूँ। उसके बाद अर्थली नेटवर्क जो 190 कंट्रीज का एक एसोसिएशन है, उन्होंने मुझे अर्थली नेटवर्क का स्टार बनाया। इस साल ब्रिटेन से एक नई बुक निकली है इंग्लैंड से, वर्ल्ड रिकॉर्ड की। उसके अंदर हमारे 1,25,000 घोंसलों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो जूट के घोंसले हैं हमारे ऐसे वाले। उसके अलावा अभी 2 किताबें निकल रही हैं। एक हैदराबाद निकल रही है माई 60 पेजेस, अच्छा ऑटोबायोग्राफी ऑफ माइंड, जो कोई लिख रहा है। Okay. सेकंड एक बुक स्विट्जरलैंड से एक बहुत बड़ी पब्लिकेशन निकाल रही है, फेबुलस 50। उसमें 50 लोगों को लिया जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। उसमें 27 नंबर पे मेरा है। तो हम नॉर्मली ये वाला घोंसला सबसे ज्यादा बनाते हैं और ये बच्चों को सिखाते हैं, और ये 45 मिनट के अंदर उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। इसके अलावा ये जूट का है, ये इको फ्रेंडली मटेरियल से बना हुआ है। ये भी हमारा बहुत फेमस नेस्ट है। ये How टेरापेट sweet से it. बना है, ये फ्रूटी के 500 बॉक्सेस से बना है। Oh, nice. Sustainable design ये actually. देखिए इसके अंदर उतनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल
सर्कुलर इकोनॉमिक्स बेसिकली। यस यस। ये देखिए, ये फ्रूटी के बॉक्सेस से बना है, 500 बॉक्सेस से एक नेस्ट बना है। बहुत ये बढ़िया, दोनों बहुत चीजें बढ़िया हैं जो हम किया है करते आपने। हैं। आपकी जो तो डिजाइन ये दो है, चीजें हमारी। हाँ, जो मैं डिजाइन देख रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप वेस्ट को भी रियूज कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन जी, इंडिया राइट नाउ, एंड ऑल्सो वी आर मेकिंग होम्स फॉर द होमलेस, that is birds. claro. So yes, so for the audience who doesn't understand Hindi, let me just give you a brief of what he said. So he started his journey around 2008, and before when let me talk about his childhood, okay? So what happened was, when he was a small child, like a boy going to school, after coming from school, he used to do musty with all those, seeing those birds chirping and everything in his terrace. But what happened later, they moved on to other place, that is Anand Vihar. So there what happened was, he was seeing that there was a bit change in its circumstances, like I can say in the environment, where there were very less birds. So seeing this drastic change, it made him to think like, what is the reason that there are no birds here? Then he noticed the things, that there were many construction activities going on, and there were no places Yeah, yeah, left for the birds to stay. So what he did was, like, he was trying to build something out of it so that the birds can come and stay, because he remembered the, like, one story he told was, his grandparents and elders always told him to respect the other creatures which were living in their home, like they will make their nest, if there is any gap in the building or somewhere near the bushes or plants, like that. So that was the learning which he got from his parents and elders, so which he continued through. So it was the journey how it started. So that is how he wanted to create like a nest, or for homes we humans have taken their homes, so he was trying to give it back. So that's how the journey started. And the second part comes is that, and he has the long journey from 2008 to 2021 right now, and he has nearly made 1,75,000 nests made up of totally eco-friendly material, that is coconut fiber, jute, and also recently they have innovated. Tetra Pak, Tetra Pak. Yes, yes. Recently they have innovated their way by using the fruity waste wrappers and also Tetra Packs. So they are making this design, which is totally in support with the sustainable design, and also it's totally eco-friendly. And addition to that, they are providing the homes for the homeless. So this was in brief what he told. सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब मुझे ये पूछना था आपके लिए, आपने जब शुरू जी, किया, आपने जैसे बता रहे थे, मतलब स्ट्रगल थी, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं डाउट था कि मैं कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब आप मतलब आप जब बता रहे थे कि तीसरे दिन चौथे दिन जब चिड़िया आ रहे थे, एग्जाम्पल लाइक बुलबुल की जो चिड़िया थी, तो जी, ये जी, आपको, मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस लॉकडाउन में घर पर थी, तो तब चिड़िया जब आ रहे थे, तो मैं उनको जो है वीट हो या रागी हो, कुछ भी थोड़ा सा टेरेस में जी, डाल के आती थी ना, तो वो एजिटेट करते थे आके खाने में, वो पिजन जो थे। तो बाद में ऐसा हुआ कि वो आके डरते थे। खाने, हाँ, बाद में ऐसा हुआ कि वो ग्रेजुअली आने लगे, खाने लगे। तो वो मुझे वो बहुत खुशी देती थी वो इंसिडेंट। मतलब मैं ये सोच सकती हूँ, क्योंकि आप 1,75,000 नेस्ट बनाए, उसमें मोर देन 75% ऑफ नेट्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। So how या immense, like how happy must be, you must be in ecstasy, like you must be feeling so happy, right? So मैं ये चाहती हूँ आप ऑडियंस को ये एक्सपीरियंस भी बताएं, क्योंकि हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी केयर करना शुरू करें, तो वो जर्नी कैसा होगा, मतलब ये पूछना क्या चाहती पूछना। होता क्या था कि जब मैंने नेस्ट बनाने शुरू करे तो लोग हंसते थे कि आप कैसे बनाते हैं, चिड़िया तो आपके नेस्ट में आएगी नहीं, वो तो अपना नेस्ट खुद बनाती थी। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता था कि आप लोगों ने चिड़िया के लिए जगह छोड़ी है कहीं? तो अपना घर बनाया, आप लोगों ने अपने घर को बंद कर लिया, आप लोगों ने अपने दिल को बंद कर लिया, आप कहीं जगह छोड़ते ही नहीं, तो चिड़िया घर कहाँ बनाएगी? तो उनको अजीब सा लगता था सुन के। अब जब मैं वर्कशॉप करता हूँ तो उसमें 3-3 जनरेशन बैठती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बैठते हैं, उनके पेरेंट्स बैठते हैं, बच्चों के और बच्चे बैठते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि लास्ट वर्कशॉप जो हमने 15 अगस्त को करी थी, मैं और मेरी वाइफ दोनों थे। देयर वाज ए 85 ईयर ओल्ड लेडी, शी वाज ए गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम बैंगलोर। हूँ। वो ओके। आई थी, उन्होंने मुझे कहा कि 85 ईयर्स की हो गई, लेकिन आज पहली बार मुझे ये खुशी मिल रही है कि मैं किसी के लिए घर बना रही हूँ। तो मुझे यस। लगता है कि घर बनाना किसी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
और हम सब लोगों को बनाना चाहिए, क्योंकि हम थीम तो बहुत आसानी से लेते हैं। बहुत हमने बढ़िया। उनकी फूड चेन खराब कर दी। पहले हम यस। लोग घरों के अंदर घर में बहुत सारी चीजें बनाते थे, सुखाते थे उनको छत पे, वो उनका फूड चेन होता था। अब जब से पैकेज फूड आया वो उनका खत्म हो गया। हम अपने घर के अंदर कहीं भी जगह नहीं छोड़ते कि वो घर में आके कहीं अपना घर बना सके। ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाते हैं, ऑर्नामेंटल ट्रीज के ऊपर कभी भी बर्ड घर नहीं बनाएगा, वो लोकल ट्रीज पे अपना घर बनाता है। तो हमने सीमेंटेड ट्रैक बना दिए, जो बुशेज होती थी पार्क के अंदर से वो हट गई। तो जब बुशेज हट गई तो उनके लिए घर नहीं बचा, तो बेचारे घर ढूंढते हैं। हाउस पैरो जो 15 फीट तक अपना घर बनाती थी, अब कितनी बार हमारे पास लोग फोटोग्राफ शेयर करते हैं, हमसे नेक्स्ट लेके जाते हैं, वो 20th फ्लोर के ऊपर अपना घर बनाती है। तो ये बहुत अच्छा। बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम नहीं अभी जागे और हम लोगों ने अगर नहीं समझा तो शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारी। यस। तो मुझे लगता है सबको जागना चाहिए। Correct, very exact. I want to add one more point to this. According to globalyouthwatch.org, which is it has done a survey in which it says that in 2010, India had nearly 31 point mega hectares of natural forest. Now we have lost almost 11% of its land area. So we can see that its total the amount of it acted as a carbon sink. That is, it used to take 67.3 metric tons of CO2 emissions. First thing is that we lost the source of carbon sink, and second thing is that if there is no forest, of course there are the certain effects on the creatures, plants and animals which are totally dependent on the forest. So I want you to address that part, because we know that the younger generations coming should be more aware towards coming decades, because that is how we can change this situation. मैं सबको यही कहता हूँ कि आप प्लांट लगाइए, बहुत अच्छी बात है, आप नए नए ट्रीज लगाइए, प्लांट लगाइए, लेकिन आप अगर 50% प्लांट लगा रहे हैं तो 50% उन ट्रीज की भी तो केयर करिए जो पहले से लगे हुए, उनको बचाइए ना। करेक्ट। उनको तो हम पानी कभी नहीं देते, और पेड़ आपसे मांगता क्या है? नेचर को आपको सब कुछ देती है, नेचर आपको हर चीज देती है। हम नेचर को क्या देते हैं सिवाय नुकसान करने के? करेक्ट। अगर हम देखें तो थोड़े टाइम के बाद मुझे नहीं लगता इस समुद्र के अंदर जगह भी बचेगी कि प्लास्टिक की बोतल्स और थैलियां नहीं दिखाई देंगी। हम लोग सड़कों के ऊपर अपना कूड़ा फेंकते हैं, हम लोग काउस को खाना देते हैं तो प्लास्टिक की थैली में देते हैं। हमें लगता है वो बहुत समझदार है, वो थैली खोलेगी, उसमें से खाना खाएगी और थैली को डस्टबिन में डालेगी। वो बेचारी दो या 3 बार उसको थैली को हिलाती है, अगर उसमें से खाना नहीं निकलता तो वो उसको थैली समय भी खा लेती है। क्यों? मेरे बेटे ने जब अभी करा था तो एक टर्टल्स के नाक में से स्ट्रॉ निकालने में 2 घंटे लग गए थे उनको, उसकी नाक के अंदर प्लास्टिक की स्ट्रॉ चली गई। हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों नहीं अपने एटीएम कार्ड की तरह यूज करते? हम अपना एटीएम कार्ड कितना संभाल के यूज करते हैं, जितनी जरूरत होती है उतने ही पैसे निकालते हैं या उससे कम निकालते हैं। तो फिर नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्यों बर्बाद करते हैं? हमें पानी को बचाना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए। छोटी छोटी चीजें, हम घर के अंदर चार्जर लगा के फोन चार्ज करते हैं, हमारा प्लग में लगा रहता है, हम स्विच ऑफ कर देते हैं, हमें लगता है बंद हो गया, वो ट्रांसफार्मर होता है, वो बिजली कंज्यूम करता रहता है। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान रखें, छोटे छोटे बच्चों को सिखाएं, और बच्चों को मैंने घोंसला बनाना इसलिए सिखाया कि अगर वो नेचर से एक बार कनेक्ट हो गए तो वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, वो लोग नेचर के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। सही कहा आपने, सही तो कहा, बेसिक बिल्कुल। ये है मेरा। मुझे लगता है ऑडियंस को जुड़ना चाहिए, ऐसे एनजीओ को ढूंढना चाहिए जो एनवायरमेंट पे काम करते हैं। उनको पैसों से सपोर्ट मत करो, पर उनके संग स्टूडेंट बन के खड़े तो हो जाओ आप। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, उनको जरूरत है, तो उनके संग खड़े हो जाइए आप। उनको थोड़ी हिम्मत दीजिए कि आप करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। हर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता। अगर किसी में इतनी इच्छा है तो वो करना चाहता है, तो आप उसको सपोर्ट करिए ना। क्यों नहीं करते सपोर्ट? बहुत सही कहा। हम बच्चों को यही बताते हैं कि जैसे फरवरी का महीना शुरू होता है, आप पार्क के अंदर ट्विस्ट डाल दीजिए, रुई डाल दीजिए, धागे डाल दीजिए, वो सारे बर्ड उठा उठा के ले जाएंगे, अपना घोंसला उसी से बनाते हैं वो। तो हमें उनको इस तरीके से मदद करनी चाहिए, जब नेचर करती है तो हमें भी करनी चाहिए। हमें भी करना चाहिए। सही कहा आपने, सही कहा, बिल्कुल। So he was just saying that like what are the little things we can do so as to make certain changes in our surrounding environment, and he is also working very hard regarding the creating awareness in the like concerning the children, because he thinks that they are the building pillars of the nation, and also once if you taste the
closeness and warmness of the nature, you will grow on, like it will go on in your life till your end. So that is what he feels about the children, and why the way he started various workshops. So this NGO conducts various workshops. It conducts for children as well as the middle age and as well as the third age also. So totally there are all the generations involved, या but they और yeah. हम लोग बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के ऊपर थिएटर करते हैं, बायोडाइवर्सिटी पे थिएटर करते हैं। हम लोग जो लोगों को आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं, ट्रीज की, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की। वो नेचर डिटेक्टिव करके एक प्रोग्राम हुआ था, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं आप उसको, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम Yeah. लिंक भेज देते हैं, पर हम उनको दिखाते हैं कैसे। हम उनको वर्चुअल टूर दिखाते हैं, क्योंकि अभी पैंडेमिक के अंदर तो आप जा नहीं सकते थे, तो हम उनको पैंडेमिक के अंदर वर्चुअल टूर दिखाया करते थे। जो फॉरेस्ट इतना खूबसूरत होता है, आप उसको फील, और नेचर फील करने की चीज है। उसको, नेचर को आप डिस्कार्ड मत करिए, वो आपकी मदर है, वो मदर अर्थ बोलते हैं हम उसको। अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसके साथ प्यार नहीं करेंगे, लेकिन जब वो हमारे संग बदला लेगी तो फिर हम बहुत रोएंगे। जो हमें जरा सा भी नुकसान पहुंचता है तो हम कहते हैं ये तो तबाही हो गई, ये तो नेचर ने हाँ. अपना बदला ले लिया। तो वो क्यों नहीं लेगी? आपको दे ही रही है ना वो सब कुछ। हम हर जगह इंक्रोचमेंट करते चले जा रहे हैं, नदी के ऊपर, जंगलों में, आसमान पे, चांद तक पहुंच गए, लेकिन हमारी भूख खत्म नहीं होती कभी कि हमें हाँ. इसको नहीं खत्म करना चाहिए, इस नेचर को जिससे हम पैदा हुए। तो मुझे लगता है इंसान को अब थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। हाँ. अदरवाइज होगा क्या कि लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस होता जाएगा, और फाइनली हम एक ऐसी जगह खड़े होंगे कि हमारे पास नेचर की कोई चीज नहीं। Correct, correct. So he was just saying that, like, as we humans are occupying the major air, space, water, and everything, we are using the resources very much. Like, overuse of the resources will cause the depletion of the resources, which will cause the disastrous effects in the coming days. Also, I can say we are already facing the certain many factors, and we can see the climate change, or there is lack of water, groundwater, and there is no proper flooding and no proper drainage because of the lack of seepage in the groundwater. So all these things are nothing but the effects of the problem which we are facing. So, and I also want to add on one point that the journey was not easy, because as he said, there were people who were laughing at him, saying that who, like, the birds will build their own nest and they will not come and stay in what you are building. So he has a tight answer now, saying that, and he has already achieved those what certain limits, where he can say that he has given homes to nearly 1,75,000 of nests they have built, and in which 1,50,000, more than 75% of the nests are already occupied. So another part is I want to mention and highlight that they are having the records of Limca Book of Records, and also they also have the London World Book of Records for creating 1,25,000 nests using the jute and Tetra Pak. So also they have got a national award for doing such science and innovative ideas using all those things. Many more to go, sir. I really appreciate, and I'm really happy to see your work. So next thing I wanted to ask was, you were talking about Thank you. green theater and all those things. I just wanted to add one point, that we know films have huge impacts on people overall in our society, because that is how I can say it acts as a mirror, because Yeah. people try to imitate all those characters. It may be good or bad, so why not use that good resource? Like, it creates such an impact, why not use it for a good resource, as you mentioned regarding the bioconservation and all the eco-friendly. Definitely, Yes, definitely. correct. So I just want you to We tell. have done the climate वाटर कंजर्वेशन पे जो हमने थिएटर किया था, उसमें 94,000 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था पैन इंडिया के अंदर। और उसमें हमने उन्हीं लोगों की स्टोरीज ली थी जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन के अंदर कोई रिमार्केबल काम किया था, उनको डिपिक्ट किया था हम लोगों ने, उनका कैरिकेचर किया था। ऐसी क्लाइमेट चेंज में भी वाइल्ड लाइफ के अंदर जो हम थिएटर करते हैं, वाइल्ड लाइफ में छोटे बच्चे थिएटर करते हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनका मेकअप करके वो लोग बताते हैं कि हमें बचाओ, हम खत्म होते जा रहे हैं, हमें बचाओ। तो वो एक अच्छा सीधा इम्पैक्ट जाता है बच्चों का, और वो पेरेंट्स देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि उनके बच्चे के सेंसिटिव जोन जागे और एनवायरमेंट के प्रति इतने ज्यादा ईमानदार हो रहे हैं। तो अगर ये बच्चे समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले हम लोग मास्क लगाए हुए अगर पॉल्यूशन में किसी को देखते थे तो हम हंसते थे उसको देख के, हम कहते थे यार ये मास्क क्यों लगा रखा है, तुम्हारे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और अब बिना मास्क के हम घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि अब हमें अपना डर है, अब हमें बीमारी का डर है। पहले हम उनकी हंसी उड़ाते थे, और आप देखिएगा 5 साल से मास्क कहीं नहीं बना, आपको लगाना ही पड़ेगा। दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा हाई है कि आप बाहर सांस नहीं ले पाते, बेहोश हो जाते हैं आप। अगर बहुत ज्यादा आपको
अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाए। तो मुझे लगता है हमें सारी चीजों को देखते हुए एक चीज तो ध्यान रखनी चाहिए, ग्रीन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकें उतनी ज्यादा करनी चाहिए। पानी को बचाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए। पानी हम कितना बर्बाद करते हैं, अब तो पानी सीधा घर में आ जाता है। आपको पता है अगर 70 लीटर पानी है पूरे वर्ल्ड में, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर कहते हैं 70 लीटर है, तो वो 70 ही लीटर लौट लौट के फिर वापस आता है, फिर दोबारा यूज होता है, उसी से बारिश होती है, उसी से बर्फ पड़ती है, फिर वो पानी आ जाता है। तो करेक्ट। नेचर का कितना अच्छा सिस्टम बना हुआ है अपना, हम उस हाँ, सिस्टम को बिगाड़ते चले जा रहे हैं बार बार। करेक्ट. जी। One more thing, he was just saying that like they are using the green theater, in which what they will do is they will use the children to enact all the stories which are related to water conservation and the conservation of biodiversity. So that's what they do. And I have to say they had a remarkable, that is 94,000 girl students were involved and participating. Like they are actively participated in this session, so which is a huge number to gather and such a huge success, and we all congratulate No, you. and there is another theater. There is Okay. another theater on climate change. Prathi Vandana, 1,12,000 students There you go, 1 lakh. associated with that in Okay. 24 cities, 17 states, and 12 languages. This is in Limca Book of Records. This is huge, sir. I cannot like figure out like how can you even reach so many people, that is like lakhs together. That's of course has to be there in our Limca Book of Records. That's huge. And I should say And that, the two projects are in 7 months. In 7 months only. oh In great. 7 months. One project 7 months. One project 7 months. Okay, I'm in awe of your records listening to them, because in 7 months of span, doing such a huge numbers, maintaining the crowd and making them like preparing the I act. done a theater on climate change. Okay, I done a theater in down south Bangalore on okay. climate change. Oh, great. 14 schools participated in that. Oh, I think so in 2012. 2012. okay. So in 2012, there was Now again I am doing a work with the Department of Science and Technology. It's a theater on the science innovation. 10-minute theater on the science innovation. okay. So you And I'm doing in the 40 cities now. 40 cities. okay, that's great. We should just applaud for your work, right? Because involving in 14 cities, and also you made a theater related to climate change in Bangalore in 2012. So that's great. I can say I have nothing much left to say, because it's very huge. So one last question I had. Anything else? Yeah, one last Yeah. question I had was regarding how like you create all those virtual events and workshops. So I want you to tell in briefly that what our audience can do, like if they want to support your mission and vision, so what they can do, and just let us know like what are the things you need to do if they want to join you, please. You have to be the bridge under your audience and me. You can create a link and we Okay. could do a workshop on the bird nest with the home available material. Okay, I can do that. that would be Once great. you enroll the people, they will join you. I will teach them how to make a nest from the home available material. Oh, that would be great, sir. Let's work And on this. I think just 40 to 50 rupees, they will create a nest for the bird Yes. with the home material available. Oh, that's great. So let's look And on to this. join us, just write to us on Equity Found. Just write to us. Just Google. Just Google me. There is a mail address. There is a website address. There is a phone number. You can contact us. There is no problem. We can join, and we can join for the green movement with you. No Okay, problem. thank you. It was a very rich Thank you. session, I can say, Thank meeting you. And I am ending the session by saying these things, audience. Like, as you heard from him, like you can contact him through via email, or they have their own website, and I will put the link in the description. You can check it out if you want to know more. And also, if you want to do anything like in collaboration with them, like if you want to have an online workshop related to how to build nest and all those things, you can definitely contact him. He will definitely help you to do so. And also let's make sure that we can do on our workshop related to this. And if you are interested for the workshop, please let me know via email or Instagram so that we can do this. So thank you for your time, sir. Thank you for doing this. बहुत shukriya. Thank you. Thank you everyone for sparing your precious time to listening to this.
And also feel free to give feedbacks to your host via email prv480172@gmail.com, or you can also connect with me on my social media handle at Namaste People. We'll come with a new story next week, so stay tuned.